online classes and courses. My name is Rupinder Kaur and my qualification is here in front of your eyes. And today I'm going to deal with a very important topic for the graduation students. That is a poem, I Will Embrace Only the Sun, written by Tripura Neni Srinivas, who lived on this earth for a very short period, but he made his mark in the realm of poetry. Unfortunately, we lost this revolutionary Telugu bard in an auto accident. So without any more delay, let's right away plunge into the topic and start. So first of all, here I would like to tell you about the poet. Tripura Neni Srinivas is a Telugu poet. He is famous for his distinct expression of native language Telugu. सो त्रिपुरा नेनी श्रीनिवास एक तेलुगु पोएट है और वो तेलुगु लैंग्वेज में ही अपने एक अलग ही एक्सप्रेशन के लिए अलग ढंग से बात रखने के लिए जाने जाते हैं. The present poem is a part of his collection of the poems in Telugu titled, this title is in Telugu and in English it is Secret Movement. So ये poem इनकी एक पोइट्री की कलेक्शन का एक पार्ट है. एंड आई वुड ऑल्सो हाईलाइट हियर would like to highlight the correct pronunciation of this word. So many pronunciations right now you may be hearing. Some people call it a poem. Yes, it's right, but if you go to the Cambridge University online pronunciation, if you visit their website, so this word carries two pronunciations. In UK, according to the British pronunciation, this is poem, right? And according to the American pronunciation, this is poem. And people have started calling it a poem, straight away a poem, right? So it's a poem in British English and it's a poem in American English. And the poem I Will Embrace Only the Sun has been written by Tripura Neni Srinivas and it was translated into English by K. Damodar Rao. So I Will Embrace Only the Sun is the topic of today's discussion. Name of the poet, once again, why I am repeating it, so that you may learn about the name, learn this name, Tripura Neni Srinivas. And what is the central idea of the poem? The central idea is a very thought-provoking. Indeed, the poem is very thought-provoking. The poet makes a strong plea. Plea means request. He is requesting everyone for new ideas and originality in thinking. The poet here is saying कि आप अपने विचारों में originality रखो, किसी की नकल नहीं करो, आपके विचार आपके होने चाहिए, नए विचार होने चाहिए. तो यहाँ पे वो बहुत strongly एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि किसी को कॉपी मत करो, कॉपी कैट मत बनो. He condemns blind imitation. वो blind imitation की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं. यहाँ पे उनको ब्लाइंड इमिटेशन, आंखें बंद करके, आंखें मूंद के किसी के पीछे चलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. सो ही कंडेम्स, कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं. ही इज प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं. क्या करने के लिए? टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपनी लाइफ तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस, उसका बलिदान देने के लिए तैयार हैं. फॉर द सेक ऑफ ओरिजिनलिटी, रियलिटी या असलियत के लिए वो अपनी जान तक गंवाने को तैयार हैं. He shows his concern for those who carve their identity as a blind imitation of others. और वो कहीं ना कहीं अपना बहुत सीरियस वाला कंसर्न दिखा रहे हैं. वो उन लोगों पे तरस खा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत चिंतित हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढते हैं, अपना व्यक्तित्व गवा देते हैं
और करते क्या हैं, दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, उनको ब्लाइंड इमिटेशन करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने कॉपी कर दिया उसे, किसी ने कुछ लिख दिया आपने वहीं से कॉपी करके उसको अपना नाम देके आगे अगर प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट इज रियली रॉन्ग। वो इन चीज़ों के बिल्कुल एंटी हैं। ही शोज हिज कंसर्न फॉर दोज हु कार्व their identity as the blind imitation of others. So अपनी originality, अपना कंटेंट होना चाहिए। डेफिनेटली वी ऑल डिपेंड ऑन द प्रीवियस आइडियाज। जो दुनिया में पहले बातें कही गई हैं हम उन पे डिपेंड करते हैं। अब ये एक पोएम आपको बहुत जने बड़े अलग अलग अंदाज से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, बट अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बीच में रखना, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू क्लियर है कि किसी को आंखें बंद करके फॉलो मत करो, अपनी क्रिएटिविटी भी बीच में रखो। सो द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम आर there is an appeal for originality and vitality in life. तो सिर्फ he is not only related with the poem, वो अपनी आपकी ज़िंदगी में भी यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में भी सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ो। आप अपनी ज़िंदगी को डालिया बोरिंग ना होने दो, उसमें हमेशा ओरिजिनलिटी और नए आइडियाज़ रखिए। The poem is subjective in nature. तो कहीं ना कहीं पोएम में दिल की बात करी गई है। यहाँ जो चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं वहाँ हम अपने दिल की बात करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होती हैं वहाँ पे यू आर नॉट आस्क्ड योर ओपिनियन। आपने बड़ी बात देखा होगा, आपने टेस्ट दिए होंगे MCQs वाले, तो दे डोंट आस्क यू कि आपका ये आंसर देने का मन है तो आप क्यों दे रहे हो, वो आपसे रीज़न नहीं मांगते, वो सही साफ साफ आपको बोलते हैं इधर येस और नो, या इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर लो। तो अब सब्जेक्टिव इज व्हेन यू talk from the bottom of your heart, and objective is when you stay aloof, you are not affected by the circumstances and you are just reporting them excuse me. तो यहाँ पे जो पोएम है हमारी, that is subjective in nature. use of first person narrative, यहाँ पोइट ने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को यूज किया है, जिसका मतलब है कि पोएम में आई वर्ड यूज हुआ है राइट, आई वर्ड यूज हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर नरेटर या स्पीकर बोल सकते हो, या पोइट खुद है यहाँ पे। तो कई बार होता है कि पोइट आगे किसी नरेटर को वो काम दे देते हैं बोलने का, और आई जो है इट ईदर स्टैंड्स फॉर अ नरेटर या स्पीकर या पोइट के खुद के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। However, the poem moves beyond subjectivity to universality. अब हो क्या रहा है पोएम में, बात तो वो अपनी कर रहे हैं कि मुझे नहीं ये पसंद, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल की बात करते करते कहाँ जा रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में, that all should follow originality. So here his poem is moving from subjectivity to universality. Universal होता है applicable to all, जो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसमें सबकी बात हो रही है। Conveying general message for the mankind in favor of innovation and progressive change. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पोएट हैं वो बार बार हमें मैसेज दे रहे हैं। किसका मैसेज दे रहे हैं? इनोवेशन का और प्रोग्रेसिव चेंज का, कि दुनिया में चेंज आना चाहिए। आफ्टर ऑल चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बट वो जो चेंज है वो बेहतरी के लिए आए। वो चेंज ऐसे ना आए कि पहले किसी ने एक पोएम या कोई एक नॉवल, कोई चैप्टर लिख दिया, हम उसको कॉपी कर रहे हैं। ये चेंज नहीं चाहिए कि सिर्फ लिखावट बदल गई या बाहर बुक का कवर बदल गया। ही वॉन्ट्स टू से हियर, आप उसको चेंज करो, मॉडिफाई करो, इम्प्रोवाइज करो, इम्प्रूव करो, प्रोग्रेसिव चेंज, अच्छी चेंज की बात हो रही है, नेगेटिव चेंज की बात नहीं हो रही है। And as far as the reference to the context of this particular poem is concerned, so for all those students of graduation, some of you must be in appearing in the exam through private mode. Private बच्चे होंगे, regular बच्चे होंगे. So for everybody's convenience, I have even given the reference to the context, which generally students get confused कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसंग, राइट। एक्सप्लेनेशन होती है उसकी व्याख्या। इंग्लिश में प्रसंग बोलते हैं हम, प्रसंग को बोलते हैं हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। So these lines have been taken from the poem. Either you can say these lines have been culled from, right? Culled from. So spellings of culled will be CULLED. Culled. I'm really sorry, I'm not
in habit of writing like this. So culled from, it again, it simple means taken from, right? So it's culled from, or it's taken from the poem I Will Embrace Only the Sun, written by a famous Telugu poet. We have already repeated his name number of times, so I don't guess now there won't be any there is any problem for you to learn it. So, written by a famous Telugu poet, Tripura Neni Srinivas. The poem deals with the importance of originality. बार बार यही बात आ रही है, ओरिजिनलिटी की महत्ता, उसके महत्व के साथ ये डील कर रही है. द पोएट हेट्स ब्लाइंड इमिटेशन, आंखें बंद करके किसी को कॉपी कर देना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. अगर आपको किसी टीचर ने कोई काम दिया है कि ये ऐसे लिखो, और अगर आप अपने फ्रेंड से हूबहू कॉपी करके वो दे रहे हो, सिर्फ उसके ऊपर अपना नाम लिख रहे हो, तो दैट इज व्हाट द पोएट इज हेटिंग हियर. ब्लाइंड इमिटेशन नहीं करनी. आपने उसकी एक लाइन देख ली और उसके बाद अगर आप अपना खुद का ऐसे लिख रहे हो, दैट इज व्हाट ही इज प्रॉम्प्टिंग हियर, ही इज प्रमोटिंग हियर. He wants you to do it. अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ. He cannot live a life of stagnation. वो बिना कोई अच्छा काम, नया काम किए एक जगह रुकी हुई लाइफ तो जी ही नहीं सकता. पोइट अपनी बात कर रहा है कि वो नहीं रह सकता ऐसी जिंदगी, बोर्डम भरी जिंदगी नहीं रह सकता, उसको नयापन चाहिए. A life without new ideas is equal to death. तो ऐसी लाइफ जिसमें नए आइडियाज नहीं है वो मौत के बराबर है उसके लिए. इन दीज लाइन्स, इन द गिवन लाइन्स, द पोएट सेइंग्स. इसके बाद अब हम स्टेंजा वाइज सारी की सारी लाइन्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? फॉर बेटर क्लैरिटी यू मे मेक नोट्स, यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपीज सो दैट यू माइट रेफर टू योर कॉपीज फॉर द फ्यूचर यूज. और नहीं तो ये वीडियो पड़ा ही रहेगा यूट्यूब चैनल पे, जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन रेफर इट. So, what is the development of thought in the poem and explanation? So, पहले reference to the context, अब explanation, प्रसंग सहित व्याख्या. And keep it in mind, students generally make mistakes here. The spellings of explain are E-X-P-L-A-I-N. यहाँ पे I होता है explain में, but जब आप explanation बनाते हो explain को, तो I नहीं रहता. बहुत बार देखा गया बच्चे यहाँ explanation में भी I डाल देते हैं, which is wrong. So learn the spellings. Explanation. It's not explanation. Explanation. So here are the lines of the poem. I have always doubted. Why I have underlined this word? देखो, किसी भी कविता को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उस वर्ड को किस तरह से ले रहे हो और किस तरह से बात आगे रखना चाह रहे हो. In the interpretations of poetry, nobody is wrong if you have a proof of it. If the word is here, so उसमें कोई भी मिस्टेक या नहीं कहीं मानी जा सकती कि आपने गलत कहा है. हर बंदे का देखने का नजरिया अलग हो सकता है. Why I have underlined these words? ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी रहे कि इस लाइन में क्या है. डाउट कर रहा है वो. इस लाइन में क्या बात हो रही है? शेड ऑफ अ फेस, किसी के फेस की परछाई की बात हो रही है दूसरे फेस पे. यहाँ बात हो रही है किसी को नीचा देखना. वो किसको नीचा देख रहा है, किसको अच्छा नहीं समझ रहा? मिरर को. मिरर क्या करता है? एक रिफ्लेक्शन देता है, बस. अब इन वर्ड्स के साथ आपको इसको याद रखना आसान होगा, बट आई हैव नॉट डन इट टिल द लास्ट स्टेंजा, क्योंकि एक बार आइडिया देने के बाद आई इवन वांट यू शुड शो योर ओरिजिनलिटी. आई हैव ऑलवेज डाउटेड. मैंने हमेशा ही डाउट किया है. द डिस्टिंक्ट शेड ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस. एक फेस की दूसरी फेस के ऊपर जो परछाई है उसको उसने डाउट किया है, मतलब नकल पसंद नहीं है. आई ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द मिरर. मैंने हमेशा से ही मिरर को बड़ी अच्छी नजरों से नहीं देखा. That makes man a mere reflection. क्यों मिरर पसंद नहीं है? क्योंकि मिरर आपको कोई नई चीज नहीं दिखाता. मिरर आपको आपकी परछाई दिखा देता है. कभी ऐसा हुआ है आपने शीशे में किसी और की शक्ल देखी हो? नहीं, हमें अपनी दिखती है. तो डोंट गो टू द हॉरर मूवीज नाउ. क्यों वहाँ ये होता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना. सो अब
When we look at the mirror, तो मिरर में आपको आपकी अपनी परछाई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि मिरर ने कुछ ओरिजिनल कोई नई चीज़ नहीं दिखाई, आपको आपकी ही रिफ्लेक्शन दिखा दी। जैसे मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही उसको ना मिरर पसंद है ना मून पसंद है। आगे आएगा ये भी। So how you would explain these lines in English? In these lines, the poet openly shows his dislike about copying. उसको कॉपी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉपिंग के लिए वो अपनी डिसलाइक को शो कर रहा है यहाँ पे ओपनली। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल इंग्लिश। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। ही हेट्स इमिटेशन। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं इसलिए ताकि याद हो जाए। एक इंसान की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हेट्स ज्यादा होते तो हम कहते थे हेट इमिटेशन, यहाँ पे ही हेट्स इमिटेशन। ही हेट्स इमिटेशन, उसको नकल से नफरत है। He always dislikes the person who copies others in thoughts and actions. वो हमेशा ही नापसंद करता है ऐसे इंसान को जो थॉट्स में और एक्शंस में दूसरों को कॉपी करते हैं। राइट? उसको ऐसे इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो दूसरों को कॉपी करते हैं। Such people are like mirrors. ऐसे लोग जिनके पास अपना खुद का कोई आइडिया नहीं है, कोई थॉट नहीं है, वो क्या करते हैं? दे आर लाइक मिरर्स, वो शीशे की तरह है। who do not show originality, जो बिल्कुल भी ओरिजिनलिटी शो नहीं करते हैं, but only the reflection of others, वो दूसरों की रिफ्लेक्शन, दूसरों की सिर्फ परछाई आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल कुछ नहीं दिखाएंगे। ऐसे लोग उसको अच्छे नहीं लगते। आई होप things are clear till now. Therefore, he does not like the mirror because it makes man a reflection only. उसको मिरर पसंद नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंसान को एक परछाई, एक रिफ्लेक्शन बना के छोड़ देता है। When a man copies someone else, he loses his identity. इसी तरह से रियल लाइफ में जब आप किसी को कॉपी करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपना व्यक्तित्व खो देते हो, आप अपनी पहचान खो देते हो, आप एक कॉपी कैट बन जाते हो। He becomes a reflection of someone else. आप किसी और की रिफ्लेक्शन बन जाते हो। मैंने इधर से कोई बात सुनी, मैंने किसी और को बता दी, तो मेरा अपना क्या इनपुट है, राइट? तो आपके अपने थॉट क्या है? आपने किसी से कोई बात सुनी, आपने अगर उसके ऊपर अपनी रिसर्च करी और फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार किसी के आगे रखे, दैट इज ओरिजिनलिटी, राइट? एंड हियर इन दीज लाइन्स there is a strong message that a human should not become exact copy of someone else. उसको किसी और की exact copy नहीं बनना है, right? Someone else conveyed through the imagery of mirror that only reflects the image. तो मिरर की इमेज को यूज करके यहाँ पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी की भी एग्जैक्ट कॉपी किसी की नहीं बनना, हमें अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखनी है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। So here in these lines, with the 20 centuries old sky as witness, आसमां एक चश्म दीद गवाह की तरह सब देख रहा है, filled with the tears of people, और ये समा कैसा रहा है? लोगों के आंसुओं से भरा हुआ। amidst sobs of 7 seas, ऐसे जैसे 7 समुद्रों को sobs के साथ, सिसकियों के साथ भर दिया हो। और जहां बात आई है 7 समुद्रों की, महासागरों की, that occupy 1/3 of planet Earth. We all know कि धरती का 71% एरिया पानी से ढका हुआ है और 29% एरिया लैंड है जिस पे हम रहते हैं। Excuse me. Standing in the corner of this period of time, और कहता मैं एक तरफ खड़ा होके क्या कर रहा हूँ? I am recreating myself. मैं अपने आप को दोबारा नए सिरे से बना रहा हूँ, once again. मैं पुराने आइडियाज, पुराने थॉट्स को ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी ज़िंदगी
बोर नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी एक जगह रुक नहीं सकती। आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, मैं अपने आप को नया बना रहा हूँ, राइट? So in these lines the poet says that sky is like God. Sky भी भगवान की तरह, जैसे हम कहते हैं कि God is omniscient, God को सब पता है, God is present everywhere, God हर जगह पे present है, उनको सब कुछ पता है, वैसे ही आसमान से कुछ छुपा नहीं हुआ, आसमान भी सब कुछ देख रहा है और 20 सेंचुरी से स्काई ने भी सब कुछ देखा है। As a witness, एक चश्मदीद गवाह की तरह, the sky has seen age-old history of man and his activities. तो आसमान ने भी इंसान की एक्टिविटीज को और इंसान के इतिहास को देखा है। He also says that the 7 oceans of the world are filled with tears. जो 7 समंदर हैं दुनिया के, उसने कहा है, वो पोइट यहाँ कह रहा है, वो पानी से नहीं, वो किससे भरे हुए हैं, वो इंसानों की टीयर्स और सोब्स से भरे हुए हैं, वो इंसानों की आंसू और उनकी सिसकियों से भरा हुआ है, महासागर जो है भरे हुए हैं। These oceans cover 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ, और 1/3 एरिया जो है ये महासागर अर्थ का कवर करे हुए हैं, इन ऑक्युपाई करे हुए हैं, ये वाली लाइन, दैट ऑक्युपाई 1/3 ऑफ प्लैनेट अर्थ। The situation is very serious. Situation अच्छी नहीं है, but the poet is hopeful. जैसे आजकल भी देख सकते हैं second wave of coronavirus is going on. COVID-19 से कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग डेली इन्फेक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट बार जो है इट इज़ राइजिंग डे बाय डे, और अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। But still there is hope. Still there is hope that if these mini lockdowns will work, if we think about it seriously और हम ज़्यादा movement ना करें, unnecessary बाहर ना घूमें, तो we can flatten the curve very soon. So with this hope, let's get back to the poem once again. He does not want to follow age-old customs and bad habits. तो यहाँ poet जो है वो standing in the corner of the दिस टाइम पीरियड, वो देख रहा है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, सीरियस है सिचुएशन, लेकिन वो होपफुल है, वो अपने लेवल पे, ही डज नॉट वांट टू फॉलो एज ओल्ड, सदियों पुराने कस्टम्स और बुरी आदतें वो फॉलो नहीं करना चाहता। ही सेज दैट ही इज रिक्रिएटिंग हिमसेल्फ फॉर बेटरमेंट। यहाँ वो कह रहा है कि वो रिक्रिएट कर रहा है अपने आप को, हिमसेल्फ फॉर बेटरमेंट, अपने आप को बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए रिक्रिएट कर रहा है। The sensitivity and a sense of responsibility in the poet is reflected through his feelings of sorrows for the people. तो जो sensitivity है उसके अंदर, एक sense of responsibility, बहुत sensitive है वो अंदर से, उसके अंदर जिम्मेवारी का एहसास है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पोइट की जो लोगों के लिए फीलिंग्स है ना, कि लोग दुखी हैं, वही बंदा लोगों का दुख देखेगा ना जो अंदर से खुद सेंसिटिव है। सो द सेंसिटिविटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोएट इज रिफ्लेक्टेड, का कैसे झलक रही है, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, थ्रू हिज फीलिंग्स ऑफ सॉरो, उसकी जो दुख भरी फीलिंग्स हैं, किसके लिए, फॉर द पीपल, ही इज फीलिंग सॉरी फॉर द पीपल, ही इज फीलिंग सैड फॉर देम, एंड ही इज लिटरली कंडेमिंग देयर इमिटेशन ऑफ अदर्स, कि वो अपनी ज़िंदगी खुद के बलबूते, अपने नाम पे, अपने आइडियाज़ पे, अपनी क्रिएटिविटी पे क्यों नहीं जी रहे हैं। Alright, let's move to the next lines. Next stanza. Here the lines go. I always like the song. अब इसको गाना पसंद है, कैसा पसंद है, that defied total comprehension. कॉम्प्रीहेंशन या आपका वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढते हो, दिस कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। वैसे उस कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए। सो उसको ऐसे गाने पसंद हैं जो टोटली समझ में नहीं आते हैं, डिफाइंड, जो समझ में नहीं आते हैं, वेयर देयर इज स्कोप फॉर इमेजिनेशन, जिनमें कल्पना का स्कोप, कल्पना का कोई आप कहो कि हल्का सा भी अगर है आइडिया कि यहाँ आप अपनी इमेजिनेशन लगाओगे तो उसको ऐसी ही
अगर तो आपको चीज़ समझ आ गई फिर तो आप अपना दिमाग ही नहीं चलाओगे। तो उसको ऐसे गाने नहीं पसंद जिनमें सारी समझ आ जाए उसको ऐसे गाने पसंद हैं जिनमें स्कोप हो इमेजिनेशन का। I made a habit of rebirth again and again। तो कहता है मैंने तो आदत बना ली है रीबर्थ की। अब बर्थ जो है वैसे तो रीबर्थ पहले बर्थ है फिर डेथ है फिर रीबर्थ है। तो यहाँ रीबर्थ क्या है कि अपने आइडियाज को मारना भी, अपने आइडियाज पुराने आइडियाज को मार देना भी रीबर्थ है, जो वो बार बार उसने आदत बना ली है ये करने की। Isn't birth a victory over death? क्या कहता है बर्थ जो है वो मौत के ऊपर जीत नहीं है? डेफिनेटली है। एक चीज़ अगर मर रही है और एक तरफ नई चीज़ की पैदाइश हो रही है, वो अपने आप में ओरिजिनलिटी की पैदाइश हो रही है, तो ये भी अपने आप में जीत है। वी यूजुअली फील बैड ओवर द डेथ्स, बट वो यहाँ पे एक होपफुल चीज़ पीछे दिखा रहा है, होपफुल आइडिया पीछे दे रहा है कि अगर एक चीज़ खत्म हो रही है तो नई पैदा भी तो हो रही है ना। अगर वो खत्म ही ना हो तो नई के पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, या दुनिया कैसी होगी अगर ऐसे ही हो जाए। तो here he is saying birth is victory over death, but he's asking us, there is a question mark, there is interrogation here, that isn't birth a victory over death? Yes, it is. Aren't ideas creators? क्या आइडिया अपने आप में क्रिएटर नहीं है? एक नया आइडिया एक और नए आइडिया को जन्म देता है, तो आइडियाज भी तो क्रिएटर ही हुए ना। अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आए तो आप उस आइडिया को पूरा करने के लिए और कितने आइडिया सोचोगे। मान लीजिए मैं सोचूं कि मैंने मेरे घर पे एक ट्री उगाना है, ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस आइडिया को पूरा करने के लिए मेरे दिमाग में एक और आइडिया आएगा, मुझे सीड्स चाहिए, मुझे पॉट चाहिए, मुझे सॉइल चाहिए, राइट, वाटरिंग सिस्टम चाहिए। तो एक आइडिया लीड्स टू lot more ideas. Aren't ideas creators? Yes, ideas are creators. In these lines, the poet says that he is always in favor of songs which cannot be understood easily. उसको ऐसे गाने पसंद हैं, ऐसे pieces of poetry पसंद हैं, ऐसी verses, ऐसी चीज़ें पसंद हैं जिनको समझा नहीं जा सकता। जिनको समझा नहीं जा सकता वहाँ आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, उसको ये पसंद है। If everything is within understanding, there is no scope for imagination. अगर हर एक चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ के बीच में आए तो वहाँ इमेजिनेशन का तो स्कोप ही नहीं रहेगा, इसलिए उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। Every song or poem should leave something to the imagination. हर कोई गाना, हर कोई पोएम कुछ ना कुछ अगर इमेजिनेशन कल्पना के लिए छोड़ दे वही बेहतर है, और उसको छोड़ना चाहिए किसकी कल्पना के लिए? ऑफ द रीडर एंड लिसनर, पढ़ने वाला या सुनने वाला। ऐसा गाना होना चाहिए, हर गाने को, हर पोएम को पढ़ने वाले या सुनने वाले की कल्पना के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी कल्पना के बलबूते उसको पूरा करे, वहाँ सोचे कि ये ऐसे है तो क्यों है। अगर सारा समझ आ गया फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी की। रिक्रिएशन एंड रीबर्थ आर द सिंबल्स ऑफ चेंज। रिक्रिएशन और रीबर्थ, नए सिरे से कुछ क्रिएट करना और दोबारा से जन्म लेना, दोनों ही किसके चिन्ह हैं? बदलाव के चिन्ह हैं। रीबर्थ एंड क्रिएशन गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज। रीबर्थ भी और रिक्रिएशन भी ये नए आइडियाज को जन्म देते हैं, दैट कैन चेंज द शेप ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने ना सोचा होता कि हमें ज़िंदगी बेहतर बनानी है, हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढनी है, या हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, तो शायद हम इससे भी बदतर हालत में होते, राइट। तो एक जो चेंज है, रीबर्थ है। हाँ, कई बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा नए सिरे से कंडक्ट करना, सक्सेसफुली कंडक्ट करना, ये अपने आप में ही बहुत बेहतरी की बात है। बर्थ इज अ विक्ट्री ओवर डेथ। जन्म मौत के ऊपर जीत है। थ्रू आइडियाज वन कैन क्रिएट, रिक्रिएट वन सेल्फ। ये आरंट आइडियाज क्रिएटर्स?
Yes, through ideas one can recreate oneself. हर कोई इंसान अपने आप को नया बना सकता है. Therefore, the underlined idea in this stanza is keep experimenting and create ideas through the use of imagination. This is what the poet wants to say here. Let's move to the next stanza. Here in these lines, the poet says, I never forgot the fact of a poem being repeated by scores, by number of people. A period of 10 years is called a decade, and a period of 20 years is called score. Then a period of 100 years is called a century, and if you have to talk about 1,000 years, that is a millennium. So I never forgot the fact of a poem being repeated by scores. I always resent. तो कहता मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलता, मुझे पता है कि एक पोएम को बहुत लोग रिपीट करते हैं, की जाती है. I always resent. मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है. The affront of men echoing emptily. होता क्या है, अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एको क्या होगा, खालीपन. नया तो उसमें कुछ होगा ही नहीं. वही मैंने पढ़ के सुना दी, वही आप पढ़ के सुना दो, वही कोई और पढ़ के सुना दे. Witnesses by 25 autumn seasons. तो क्या देखा है, 25 autumn seasons refers to 25 साल ही हो. Having shed many deaths and reborn yet again. तो ऑटम सीजन में क्या होता है, ऑटम सीजन में पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं, तो ये वो रेफरेंस है. अगर वो पुराने नहीं झड़ेंगे, नए कैसे आएंगे? दैट्स जरूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने वाले झड़ेंगे तो नए आएंगे. Having shed many deaths. शेडिंग किसकी होती है, लीव्स की. तो लीव की डेथ होती है और रीबॉर्न होते हैं, उसी जगह पे नए पत्ते आ जाते हैं. Standing in the corner of this period of history. तो कहते इतिहास के इस पीरियड के एक कोने में खड़ा होके मैं क्या कर रहा हूँ, I am instructing man how to sign. अच्छा, अब सबके साइन इंडिविजुअल होते हैं, अलग होते हैं. अगर आप कॉपी करना भी चाहो, फॉर्जरी का केस अलग है, लेकिन कॉपी नहीं कर पाते हम. तो साइन करना मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाना, ये बताना कि मैं अलग हूँ, मैं दूसरों की कॉपी नहीं. अब साइन तो हम अपने ही करेंगे ना. अगर मैंने साइन करने हैं, मैं रुपिंदर कौर की साइन करूंगी, आई कैन नॉट साइन लाइक यू पीपल. आप मेरे साइन नहीं करोगे, राइट? तो आई एम इंस्ट्रक्टिंग मैन हाउ टू साइन. यहाँ साइन का मतलब सिर्फ हस्ताक्षर करना नहीं है, यहाँ साइन करने का मतलब है कि मैं अपनी छाप छोड़ूं किसी चीज के ऊपर. The poet says that countless people recite a poem for many years. जो लोग हैं वो एक ही पोएम को बहुत सालों तक रिपीट करते रहते हैं. Thus the poem continues to live forever. तो पोएम जो है वो हमेशा जिंदा रहती है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास होती रहती है. The poet feels that it is useless to repeat old ideas. ठीक है, एक चीज जिंदा रह रही है, लेकिन अगर उसमें कोई नयापन नहीं आएगा तो वो यूजलेस बन जाएगी. जैसे अगर सती प्रथा आज खत्म ना होती, उसकी जगह थोड़ी लिबर्टी ना मिलती वुमेन को, तो बहुत बुरी सिचुएशन होती, राइट? ऐसे आप कैसे किसी जिंदा इंसान को जला सकते हो? तो इसलिए पुरानी आदतें, पुरानी बुरी चीजें, जब अच्छी चीजें विल स्टे फॉरएवर, अच्छी तो रहेंगी, लेकिन पुरानी और जो नकल वाली चीजें हैं उनका खत्म होना बहुत जरूरी है. The poet feels that it is useless to repeat old ideas which have nothing new in them. तो जिन आइडियाज में नया कुछ नहीं है, उन आइडियाज को रिपीट करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो बेकार है. He feels angry at those. I always resent. उनको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर. He feels angry at those who don't create new ideas. जिनके पास नए आइडियाज नहीं है, उनको, पोएट को, उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है. He refers to the passage of 25 years as 25 autumns. तो ये जो 25 autumns की यहाँ बात हुई है, यहाँ वो 25 साल की बात कर रहे हैं कि 25 साल में क्या देखा गया है. Old leaves fall in autumn, which is the symbol of death.
तो ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ते हैं, जिसका मतलब है डेथ, उन पत्तों की मौत। The poet wants his ideas to be adopted by the mankind, और पोएट ये चाहते हैं कि इन आइडियाज को सारी दुनिया, सारी मानवता भी माने कि अगर ये डेथ होगी तभी न्यू आएंगे। He wants that everyone on earth should have fresh and new ideas. इन्हीं की तरह जैसे ये रीबॉर्न होंगे एंड रीबॉर्न येट अगेन, उसी तरह से लोगों में भी फ्रेश और न्यू आइडियाज आने चाहिए। He suggests not to be a part of the crowd. वो सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें सलाह दे रहे हैं कि आप क्राउड का पार्ट ना बनो। And reassert one's individuality. वो कह रहे हैं कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने व्यक्तित्व को, अपनी शख्सियत को असर्ट करना है, मनवाना है, बताना है लोगों को कि मेरे नाम से भी कोई इंसान रहता है, जिंदा है। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। सो हियर इन दिस स्टैंजा, this is the last, the poem is ending here. These are the concluding lines of the poem. I have never lived without a new thought. कहता मैं कभी भी किसी नए विचार के बिना जिंदा नहीं रहा हूँ, जिंदा नहीं, मैं नहीं रहा कभी भी। I always want new thoughts. I will never rest until the mirrors are broken. और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सारे के सारे शीशे टूट नहीं जाते। I cannot love the moon with all its brilliance. मैं चंद्रमा को उसकी सारी लाइट के साथ भी प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो लाइट उसकी नहीं है। Even if consumed by flames, चाहे मैं आग की लपटों में जल ही क्यों ना जाऊं, I will embrace only the sun. मैं किसको चाहूंगा, किसको प्यार करूंगा, किसको एम्ब्रेस करना होता है, किसी को गले लगाना। मैं किसको गले लगाऊंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ सन को गले लगाऊंगा, सूर्य देवता को, सूरज को गले लगाऊंगा, क्योंकि सूरज ओरिजिनल है, सूरज एक है। अगर धरती के ऊपर लाइफ है, लाइट है, हीट है, तो सूरज की वजह से है, और सूरज इकलौता है। तो मैं सूरज को गले लगाऊंगा क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो किसी और से लाइट नहीं लेता, उसकी खुद की रोशनी है, वो खुद की रोशनी से सारे जग को जगमगाता है। तो मैं सूरज को गले लगाना चाहूंगा, चाहे भले ही मैं जल क्यों ना जाऊं। Come to the explanation in English. The poet says that he has never lived without a new thought. कि वो कभी भी किसी नए विचार के बिना नहीं रहे हैं। He wants to break mirrors. वो शीशों को तोड़ना चाहते हैं, which turn the human beings into reflections or shadows. वो शीशों को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि जो शीशे हैं वो इंसान को सिर्फ एक शेडो, एक परछाई बना के छोड़ देते हैं। Man is real, but his reflection is unreal. हम तो ओरिजिनल हैं, लेकिन जब हम शीशे में देखते हैं तो शीशे में हमें हमारी परछाई दिखती है जो ओरिजिनल नहीं है। और शीशा, मून भी एक शीशा ही है, मून की अपनी लाइट नहीं है। जब मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो मून रात को हमें वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मैन इज रियल बट हिज रिफ्लेक्शन इज अनरियल। The poet does not like the moon because it has no light. मून की अपनी रोशनी नहीं है तो इसको मून की पसंद नहीं है। It only reflects the light of sun. वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। He likes the sun because it has light. He likes it because it has light. उसको सन पसंद है, सूरज पसंद है क्योंकि सूरज में अपनी लाइट है। The poet wants to embrace means hug. वो सन को गले लगाना चाहता है। Even if he is consumed by flames, चाहे वो आग की लपटों में जल ही क्यों न जाए, he is ready to do so at the cost of his life. वो ये सब करने के लिए तैयार हैं अपनी जिंदगी की कीमत पे, अपनी जान की कीमत पे भी वो ये सब करने के लिए तैयार है। It means he values the originality. वो असलियत को वैल्यू करता है, वो असली चीज़ों की कद्र करता है।
The poet prefers the sun to moon as the sun stands for energy, originality and exuberance. तो सन में सब कुछ है, सन में एनर्जी है, सन में जीवन है, सन में असलियत है उसको, इसलिए सन जो है वो मून से बेहतर लगता है. Accepting the real is a great feeling of fulfillment and satisfaction in doing so. So accepting the real is a great feeling of fulfillment. तो असली को अपनाना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको मन से तृप्त होने की फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है, आप कंटेंट फील करते हो, संतुष्ट फील करते हो और सेटिस्फेक्शन होती है ऐसा करने में. Let's move to the next slide. So here are some question answers for your convenience. Why is the speaker trying to recreate himself? वो अपने आप को दोबारा नए से क्यों बनाना चाहता है, recreate क्यों करना चाहता है? The poet loves original thinking and creativity. Poet को असली सोच और creativity पसंद है. He does not like blind imitation. उसको blind imitation आंखें बंद करके किसी को नकल करना पसंद नहीं है. He does not want to be a mirror reflecting other things. उसको एक शीशा नहीं बनना, वो शीशा नहीं बनना चाहता जो दूसरों की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे, दूसरों के थॉट्स को रिफ्लेक्ट करे, दूसरों की शक्लों को रिफ्लेक्ट करे. He wants to recreate himself in new forms. वो अपने आप को ही नई फॉर्म में दिखाना चाह रहा है, अपने आप को नई फॉर्म में पेश करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, अपने आप को नया बनाना चाह रहा है अपने थॉट्स के साथ. Why does the poet like a song that is not completely understood? उसको ऐसे गाने क्यों पसंद है जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं या कम समझ में आते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हम पीछे फोन में कर चुके हैं, तो इट्स easy to answer these. The poet always likes the song that defies total understanding. उसको ऐसे गाने पसंद हैं जो समझ में नहीं आते हैं, right? Such a song leaves scope for imagination. ऐसे गाने आपकी कल्पना को टेस्ट करते हैं, आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट करते हैं. He wants rebirth, for that is victory over death. उसको rebirth पसंद है क्योंकि ये मौत के ऊपर जीत है. He emphasizes that ideas are creators. वो ये भी इस बात पे भी जोर दे रहा है कि ideas जो हैं वो creators हैं, right? Let's move to the next question. Why does the poet prefer the sun to the moon? उसको sun क्यों पसंद है moon से ज़्यादा? तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा. The poet has never lived without a new thought. वो कभी पुराने किसी नए विचार के बिना नहीं रहे हैं. He will not rest till the mirror is broken. वो शांति से नहीं बैठेंगे जब तक शीशा टूट नहीं जाता. Blind imitation should give place to originality. Blind imitation की जगह originality नहीं आ जाती. He cannot love the dull moon that has no light to give and only reflects sun's light. उसको moon पसंद नहीं है क्योंकि अपनी उसकी light नहीं है और वो sun को reflect करता है. But he is ready to embrace the hot sun. वो आग से जलते हुए sun को गले लगाने को तैयार है. Even if it means death. चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों नहीं है, बट वो ओरिजिनल चीज़ों को ही पसंद करता है. Trace the development of thought in the poem. क्या thought आया poem में? The poet makes a plea for the originality in words and deeds. तो यहाँ poet एक request कर रहे हैं असलियत की, असल चीज़ों की, चाहे शब्द हैं चाहे काम है, हर किसी में originality चाहिए. The poet hates blind imitation. Poet को blind imitation बिल्कुल पसंद नहीं है. There is no point in repeating what others have said or written years back. तो जो बात हो चुकी है, लिखी जा चुकी है, कही जा चुकी है, उसको बार बार रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है. हाँ, अगर अच्छी चीज़ है तो वो रिपीट होगी, लेकिन अगर बुरी चीज़ है तो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है. नयापन लाइए अपने थॉट्स में और अपने एक्शंस में. One should have new thoughts and ideas. आपके नए थॉट्स और नए आइडियाज होने चाहिए. He prefers the sun to moon even if he is consumed by the flames of sun. लास्ट में आके क्या कह रहा है पोइट? चाहे वो आग की लपटों में जल ही क्यों ना जाए, बट वो मून की बजाय सन को प्रेफर करेगा. And that's it.
Thank you for watching. I wish good health for each one of you who's watching the video. And even from my side, I would highlight, love the original and give wings to your imagination. Thanks a lot. Stay safe, stay healthy. Do take care of yourself and all the elderly persons at your place. Don't move out unnecessarily. Thank you very much. And if you are new to the channel, if you're watching it for the first time, don't forget to subscribe it and do press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. Thank you. Stay safe, stay healthy.